I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple. And here is your book, Computer Connect. Let's start chapter number 8, Blocks in Scratch. Let's move on to the introduction of the chapter. So, scratch coding is the process of writing and running programs. Scratch coding क्या है? ये एक process है जिसमें हम programs को लिखते हैं या फिर रन करते हैं blocks of code की मदद से. Coding means training our computer to follow the instructions given by us. ये जो कोडिंग है ये क्या है? ये एक तरीके की ट्रेनिंग है जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए. Let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know, they will know how to create a new project in Scratch. So creating a new project in Scratch, sprites, direction and understanding blocks. So these all things we are going to do here in this chapter. Let's start with the conversation between Meera and her friend Hina. So Meera says, "Hi Hina, do you remember that we had fun while working on Scratch?" क्या तुम्हें याद है कि हम जब Scratch को कर रहे थे तो उसमें हमने कितनी मस्ती की थी? तो हिना से कहती है, "Yes Meera, I enjoyed Scratch a lot." हाँ, मैंने Scratch को काफ़ी ज़्यादा enjoy किया था. Now Meera says, "I am glad to hear that Hina. Scratch is amazing, but it lets us use those colorful blocks to make our own games and stories." तो हाँ, मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ जो है याद है. स्क्रैच क्या है? ये एक अमेजिंग प्रोग्राम है जिसमें हम कलरफुल ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं अपने खुद के गेम्स और स्टोरीज बनाने के लिए. नाउ हीना रिप्लाइज दैट्स ट्रू मीरा, ये तो बहुत ही सही बात तुमने कही है. आई फेल्ट लाइक अ लिटिल प्रोग्रामर, मैं एक लिटिल प्रोग्रामर की तरह जो फील कर रही थी when we use those blocks to give instructions to the computer. जब मैं उन blocks को use कर रही थी कंप्यूटर को instructions देने के लिए. Now Meera says, "You're absolutely right Hina, तुम एकदम सही कह रही हो. Scratch makes it easy for us to learn about coding and be creative." Scratch हमें जो है और भी ज़्यादा आसान कर देता है चीज़ों को. क्या करता है वो कोडिंग को और भी ज़्यादा हम बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं जिसकी वजह से जो हम और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं. Now Ina says, "And it's so much fun." हाँ, यहाँ तो बहुत मज़ा आता है. "I can't wait to create more games and stories with Scratch." Scratch में मैं और गेम्स और स्टोरीज को क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ. Now Meera replies, "Me too, मैं भी नहीं वेट कर सकती. Let's explore even more and see what amazing things we can make." तो चलो देखते हैं हम क्या क्या amazing things यहाँ पे बना सकते हैं. So creating a new project in Scratch is the first topic that we are going to cover here. So whenever we open Scratch, जैसे ही हम Scratch को ओपन करते हैं, a new project is created, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है automatically. However, we can create a new project at any time in it. हम किसी भी वक्त एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रैच में. स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. अब कैसे हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो कुछ स्टेप्स दिए गए. सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी हमारे सामने, वहाँ से हमें न्यू ऑप्शन को चूज़ करना है ताकि हम क्रिएट कर सके एक नया प्रोजेक्ट. तो ये है हमारा फाइल मेन्यू. ये गए हम न्यू ऑप्शन पे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया स्क्रीन, नया प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाएगा. Let's learn about sprites direction. So the stage is divided into 4 quadrants. ये जो स्टेज है हमारा उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Using a horizontal line called the x-axis and a vertical line called the y-axis. तो हमारा जो स्टेज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. x एक्सिस, y एक्सिस, 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. The x वैल्यू डिटरमाइंस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्प्राइट. जो x वैल्यू है वो स्प्राइट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताता है और जो y वैल्यू है वो डिटरमाइन करता है जो वर्टिकल पोजीशन है स्प्राइट की उसको. Therefore, the position of a sprite on the stage is decided by both its x and y values. इसलिए जो स्प्राइट है उसकी पोजीशन इन दोनों ही x और y से ही डिसाइड होती है.
द पॉइंट एट विच द x एंड y एक्सेस मीट, ये दोनों एक्सेस जहाँ पे मीट करते हैं इट इज कॉल्ड द ओरिजिन, उसे ओरिजिन कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ x एंड y एट ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो, और जो वैल्यू होती है ओरिजिन पॉइंट पे वो हमेशा जीरो होती है। द x and y values of the sprite can only be changed by inserting the different values, यहाँ जो पोजीशन है स्प्राइट के उसे हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज को डाल के इन द टेक्स्ट बॉक्स में। इट हेल्प्स अस टू मूव अ स्प्राइट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्टेज, ये जो है हमें हेल्प करता है स्प्राइट को मूव करने में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टेज पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्प्राइट है और ये हमारा स्टेज है जिसमें आप देख सकते हैं एक्स वाई एक्सेस सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्प्राइट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 240, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 0 से 240 तक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम फिल करेंगे, ये एक्स है ये y है। When it moves to the right from the origin, जब स्प्राइट जो है राइट की तरफ जाता है ओरिजिन से, and decreases from 0 to -20, और 0 से -20 तक जाता है। When it moves to the left, जब ये लेफ्ट की तरफ मूव करता है ओरिजिन से, सो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये माइनस में जाएगा और राइट की तरफ जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। Similarly, the y coordinates of the sprite increases from 0 to 180, अब जो y कोऑर्डिनेट है ये 0 से 180 तक जाता है। When it moves us from the origin to and decreases from 0 to -180 when it moves down from the origin. So स्प्राइट जब नीचे की तरफ आता है तो -180 की तरफ जाता है और जब ऊपर की तरफ जाता है तो +180 की तरफ जाता है। So this is an important thing that you have to remember. Now let's quickly move on to activity 1. So add any sprite on the stage पे हमें कोई भी sprite जो add करना है, move and place it anywhere on the stage, उसे move करना है और stage पे कहीं भी रख देना है। Note down its x and y values, उसके जो भी x और y values है उसे note down करें। And name of the selected sprite, और जो नाम है selected sprite का वो आपको यहाँ पे लिखना है। So this activity you have to do yourself. Next comes understanding blocks. अब हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ब्लॉक्स आर नोन एज द कमांड्स ऑफ द स्प्राइट। ब्लॉक्स क्या हैं? ये कमांड है स्प्राइट के। देयर आर अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल इन द स्क्रैच। स्क्रैच में बहुत सारे आपको ब्लॉक्स मिलेंगे विच आर यूज टू कंट्रोल द स्प्राइट, जिन्हें यूज किया जाता है स्प्राइट को कंट्रोल करने के लिए स्टेज पे। These blocks are categorized into various types. ये जो ब्लॉक्स हैं इन्हें हम अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि मोशन ब्लॉक हो गया, लुक्स ब्लॉक हो गया, इवेंट्स ब्लॉक हो गया, साउंड ब्लॉक हो गया, पेन ब्लॉक हो गया, कंट्रोल ब्लॉक हो गया, और भी बहुत सारे ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। Each type of block serves a different function in Scratch, और हर एक ब्लॉक का एक अलग काम होता है स्क्रैच में। Basically these blocks provide the instructions to the sprite. ये जो ब्लॉक्स हैं ये स्प्राइट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में। तो पहला आता है मोशन ब्लॉक, क्योंकि जैसा यहाँ पे नाम है इसका मोशन, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। सो दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट। स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये ब्लॉक्स। एंड वी कैन मूव द स्प्राइट एनी नंबर ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हम स्प्राइट को कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आगे या फिर पीछे लेके जा सकते हैं इस ब्लॉक की मदद से। We can also rotate it clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। हम स्प्राइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करा सकते हैं। अब कुछ मोशन ब्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम। सो पहला आता है मूव ब्लॉक। तो ये क्या करता है? स्प्राइट को 10 स्टेप्स आगे मूव करने में हेल्प करता है। सो दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन इट इज फेसिंग। जहाँ पे भी स्प्राइट का फेस है उस डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। टू मेक द स्प्राइट मूव, अगर हम चाहते हैं कि स्प्राइट को मूव करने दें, so what we have to do, we have to drag the move block the number of steps into the script area. इस ब्लॉक को हमें ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लाना होगा और वहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, जितनी बार हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव एंड क्लिक ऑन द मूव ब्लॉक। जो भी स्टेप्स चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ताकि जो है स्प्राइट हमारा आगे मूव कर सके। द स्प्राइट विल नाउ मूव
बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स एज वी विश्ड। जो स्प्राइट है वो जो भी दिए गए नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। नेक्स्ट आता है टर्न राइट 15 डिग्रीज। सो ये जो ब्लॉक है ये क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है हमारे स्प्राइट का, जहाँ भी उसका फेस है वहाँ से डायरेक्शन को चेंज करेगा। एंड इट टर्न्स द स्प्राइट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज। जो भी डिग्री हम यहाँ डालेंगे उतनी डिग्री वो घूम जाएगा, चाहे तो वो क्लॉकवाइज घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे। दिस ब्लॉक इज मेनली यूज फॉर रोटेटिंग द स्प्राइट, और इस ब्लॉक को हम स्प्राइट को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गो टू ब्लॉक। सो ये जो ब्लॉक है ये हेल्प करता है स्प्राइट को एक्स या फिर वाई पोजिशन में जाने के लिए, जो भी उसका स्पेसिफाइड पोजिशन है वहाँ जाने के लिए। एंड इसे हम यूज़ कर सकते हैं ईदर रैंडम पोजिशन और द माउस पॉइंटर और टू एनी अदर स्प्राइट। जो भी रैंडम पोजिशन है वहाँ पे हम इसे भेज सकते हैं, जो माउस पॉइंटर है वहाँ तक स्प्राइट को भेज सकते हैं या फिर किसी और स्प्राइट के पास भेज सकते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू सेलेक्ट द डिफरेंट ऑप्शंस। अब हमें जो है क्या करना है, हमें जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर जो है क्लिक करना है ताकि हम अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ कर सके। नेक्स्ट है गो टू एक्स वाई। सो यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में हमने यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ स्टेप्स डाल दिए हैं, तो इतने स्टेप्स जो है हमारा जो स्प्राइट है वो कवर करेगा। सो दिस ब्लॉक इज यूज टू मूव द स्प्राइट टू द स्पेसिफाइड एक्स एंड वाई पोजिशन। इस ब्लॉक की मदद से हम स्प्राइट को जो है दिए गए एक्स और वाई पोजीशन तक मूव कर सकते हैं। इट इज़ यूज वेन एवर द स्प्राइट नीड्स टू जम्प फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ये तब जरूरत होती है इसकी जब स्प्राइट को जो है जंप करना होता है एक पोजीशन से दूसरे तक। नेक्स्ट इज ग्लाइड 6 2। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे सेकेंड्स लिखे जाते हैं जो स्प्राइट है हमारा ग्लाइड करेगा। सो दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट ईदर टू एनी रैंडम पोजीशन, किसी भी रैंडम पोजीशन पे ये ब्लॉक जो है स्प्राइट को मूव कराता है, टू द माउस पॉइंटर और अनदर स्प्राइट, माउस पॉइंटर की तरफ या किसी और स्प्राइट की तरफ, एट अ स्टेडी पेस, एक स्टेडी पेस में, इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड्स, दिए गए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड्स में। वी कैन चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम जो भी दिया गया ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से। दिस ब्लॉक पॉजेज अनदर स्क्रिप्ट रनिंग। ये जो ब्लॉक है ये पॉज कर देता है दूसरे स्क्रिप्ट को जो भी रन कर रहा होता है उसी सेम समय पे। नेक्स्ट है ग्लाइड सेकेंड्स टू एक्स वाई। सो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कितनी बार ग्लाइड करेगा, कितने डिग्रीज पे ये ग्लाइड करेगा हमारा स्प्राइट। सो ये जो ब्लॉक है ये हेल्प करता है स्प्राइट को मूव करने में, जो भी स्पेसिफाइड एक्स और वाई पोजीशन दी गई है स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेकेंड्स के लिए जो है स्प्राइट यहाँ पे ग्लाइड करता है। फिर आता है पॉइंट इन डायरेक्शन। ये जो ब्लॉक है ये रोटेट कर देता है स्प्राइट को, जो भी पोजीशन यहाँ पे दी गई है, जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 90। यहाँ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 90 रहती है और इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नंबर्स से जो भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है एफ ऑन एज बाउंस। सो अगर यहाँ पे हमारा जो स्प्राइट है ये चेक करता है ये जो ब्लॉक कि जो स्प्राइट है वो कहीं जो है हमारे स्टेज का जो एज है, जो कोना है, उसको तो नहीं टच कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो क्या होता है, जो स्प्राइट है इस ब्लॉक की मदद से वो बाउंस बैक करता है, मीन्स वो कोने से हट जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बाउंस करने लगता है, वो जंप करने लगता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक, सेट रोटेशन स्टाइल। सो ये जो ब्लॉक है ये क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है जो भी रोटेशन स्टाइल है हमारे स्प्राइट का उसको। देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेफ्ट राइट, डोंट रोटेट एंड ऑल अराउंड। ये 3 जो है चीज़ें यहाँ पे हमें मिलेंगी। फिर आता है सेट एक्स टू। ये जो ब्लॉक है चेंज कर देता है एक्स की पोजीशन को, जो भी सिलेक्टेड स्प्राइट है उसको एक स्पेसिफाइड वैल्यू दी जाती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है सेट वाई टू। अब यहाँ पे हम वाइट को सेट कर रहे हैं। सो ये जो ब्लॉक है ये चेंज कर देता है वाई की पोजीशन को, जो भी सिलेक्टेड स्प्राइट है उसकी, एंड जो भी वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है उसके अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। The following script shows how to animate the butterfly sprite using the motion block. अब यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट दिख रही है जिसमें जो है एक बटरफ्लाई को मूव करा रहे हैं हम, किसकी मदद से, मोशन ब्लॉक की मदद से। स्क्रिप्ट है यूज द चूज अ स्प्राइट ऑप्शन।
हमें जो है चूज अ स्प्राइट ऑप्शन को चूज करना है एंड बटरफ्लाई स्प्राइट को चूज कर देंगे। नाउ अब हमें चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन को चूज करना है और जो भी फॉरेस्ट का बैकड्रॉप है वो हम लगा देंगे। तो पहले हमने बटरफ्लाई लगाई, फिर हमने पीछे ये फॉरेस्ट का पूरा जो है बैकड्रॉप लगा दिया ताकि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे हमारा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, अब ये जो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ये हमें जो है एंटर करना है अपने स्क्रिप्ट एरिया में। सो व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड फॉरएवर ब्लॉक चल रहा है जिसमें जो है एक ही काम बार बार होगा। फिर गो टू रैंडम पोजीशन, एक रैंडम पोजीशन पे बटरफ्लाई जाएगी, 1 सेकेंड तक जो है माउस पॉइंटर के मूवमेंट पे जाएगी, ग्लाइड करेगी। फिर इसकी जो पॉइंट है डायरेक्शन का वो यहाँ पे लिखा गया है ऑन एज बाउंस, अगर एज पे पहुँच जाती है जो हमारी बटरफ्लाई है तो वो वहाँ से बाउंस करेगी। तो ये है एक स्क्रिप्ट जो हमें जो है लिखनी है एंड ये है आउटपुट जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। Now let's move on to the explanation. So when the user clicks on the butterfly, जैसे यूजर बटरफ्लाई पे क्लिक करता है तो क्या होता है, ये जो है एक रैंडम पोजीशन से आगे बढ़ने लगती है। Then it glides to the mouse pointer for 1 second. ये जो है माउस पॉइंटर की तरफ ग्लाइड करती है 1 सेकेंड के लिए और फिर रोटेट करती है पॉइंट पे टू इट्स 90 डिग्री पे। If the butterfly touches the edges of the stage, अगर ये बटरफ्लाई जो स्टेज है उसके एज को टच कर रही है तो ये क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड ये जो स्क्रिप्ट है ये जो है चलेगा कब तक, कंटिन्यूसली इन अ लूप, एक लूप में लगातार चलता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक को यूज किया है। नेक्स्ट, हियर एन एक्टिविटी इज गिवन, एक्टिविटी 2, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। यू हैव टू सेलेक्ट द आउल स्प्राइट, आउल स्प्राइट को हमें सेलेक्ट करना है। नाउ हमें सेलेक्ट करना है नाइट सिटी बैकड्रॉप को एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ ग्लाइड ब्लॉक इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ब्लॉक्स। ग्लाइड ब्लॉक को यूज़ करना है दूसरे ब्लॉक्स के साथ टू ग्लाइड द आउल, ताकि जो आउल है वो ग्लाइड करे। मेक श्योर इट डज नॉट डिसअपियर आउट ऑफ द स्टेज, इस बात का ध्यान रखना है कि आउल जो है स्टेज से बाहर ना जाए। नेक्स्ट कम्स लुक्स ब्लॉक। So looks blocks are used to change the look and appearance of the sprite. ये जो ब्लॉक है इसकी मदद से हम जो हमारा स्प्राइट है उसके लुक और अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। We can also apply several effects to the sprite. हम यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं अपने स्प्राइट में using looks block easily, ताकि और ये जो ब्लॉक है इसकी मदद से हम बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। Now some of the looks blocks to apply effects आर डिस्क्राइब बिलो टू हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर। अब यहाँ पे कुछ लुक्स ब्लॉक के बारे में हमें बताया गया है जिनको हम यूज़ करके हम अपने स्प्राइट के लुक्स को, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। सो पहला आता है से ब्लॉक, जिसकी मदद से जो है स्प्राइट जो है कोई वर्ड बोलेगा। ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है एज स्पीच कॉल आउट। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हाय, तो हाय लिखा है हमने यहाँ पे। ये जो स्पीच बबल है ये तब तक जो प्ले करेगा जब तक जो कोई और स्पीच या फिर थॉट इसके ब्लॉक में ना रख दे हम, तब तक जो है ये हाई बोलता रहेगा। एंड या जब तक हम इसको जो स्टॉप साइन है उसको प्रेस ना कर दें। फिर आता है थिंक ब्लॉक। थिंक ब्लॉक में जो है स्प्राइट थिंक करेगा। सो ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है थॉट बबल को दिखाने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है एंड ये जो थॉट बबल है ये तब तक प्ले करेगा जब तक जो कोई और स्पीच इसमें ना डाली जाए, या फिर ये जो ब्लॉक है इसे जो है स्टॉप साइन ना प्रेस किया जाए इसमें। फिर आता है हाइड ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है स्प्राइट को हाइड करने के लिए। फिर आता है शो ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है स्प्राइट को शो करने के लिए, वो स्टेज पे वापस आ जाता है। फिर आता है स्विच कॉस्ट्यूम टू। सो इसमें जो है कॉस्ट्यूम को जो है चेंज किया जा सकता है। ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है जो स्प्राइट है उसके कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए। एंड यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम, किसकी मदद से, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है इसमें से हम कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द टैग टैब्स। सो इन स्क्रैच देयर आर 3 टैब्स कोड। स्क्रैच में 3 टैब कोड मिलेंगे आपको, कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे और साउंड्स मिलेंगे। द कोड टैब कंटेन्स ऑफ ब्लॉक्स पैलेट। ये जो कोड टैब है इसमें आपको ब्लॉक्स पैलेट मिलेगा which has all the available blocks in scratch, जिसमें आपको सारे अवेलेबल ब्लॉक्स मिलेंगे स्क्रैच के। and allows us to drag blocks in the script area, और ये हमें हेल्प करता है ब्लॉक्स को ड्रैग करने में स्क्रिप्ट एरिया में।
द कॉस्ट्यूम टैब कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम्स। ये जो कॉस्ट्यूम टैब है इसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी कॉस्ट्यूम्स की सेलेक्टेड स्प्राइट के लिए। वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट बाय चेंजिंग इट्स कॉस्ट्यूम। हम जो हमारा स्प्राइट उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसके कॉस्ट्यूम को चेंज करके। द साउंड्स टैब कंटेन्स वेरियस ऑडियो क्लिप्स। ये जो साउंड्स टैब है इसमें आपको बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट कम साउंड ब्लॉक्स। सो दीज ब्लॉक्स आर यूज टू मेक स्प्राइट प्ले साउंड। इसमें जो है स्प्राइट जो है साउंड को प्ले करता है और कुछ साउंड ब्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे। पहला आता है प्ले साउंड अनटिल डन। जब तक हम जो है ये जो साउंड यहाँ पे दिया गया है इसको प्ले करना है जब तक जो है वो साउंड ना प्ले हो जाए। सो ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है साउंड को, जो भी सिलेक्टेड साउंड यहाँ पे दिया गया उसे कम्प्लीटली प्ले करने के लिए। एंड ओनली देन रन अदर ब्लॉक्स दैट आर बिलो इट। और उसके बाद जो भी ब्लॉक्स इसके नीचे उसे रन करना है। फिर आता है स्टार्ट साउंड। ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है प्ले करने के लिए साउंड। एंड कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट ब्लॉक विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट साउंड टू फिनिश प्लेइंग। सो बिना लास्ट साउंड के फिनिश होने से पहले ही ये क्या करता है, ये आगे के ब्लॉक्स को प्ले कर देता है। नेक्स्ट सेट वॉल्यूम टू। अब ये जो ब्लॉक है ये हेल्प करता है वॉल्यूम को सेट करने में हमारे ब्लॉक्स के। एंड द वैल्यू इज एडेड इन द बॉक्स। जो वैल्यू है वो बॉक्स में रहती है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्प्राइट और स्टेज विच हैज़ अ ब्लॉक इन इट्स स्क्रिप्ट। सो ये जो है सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? स्प्राइट के लिए या फिर स्टेज के लिए जिसमें जो ब्लॉक्स है वो स्क्रिप्ट में है। नेक्स्ट है स्टॉप ऑल साउंड्स। ये जो ब्लॉक है इसे यूज़ किया जाता है स्टॉप करने के लिए जो भी साउंड प्ले कर रहे हैं स्क्रैच में उसमें। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो यू कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू प्ले मोर देन वन साउंड। हम ऐसा स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा साउंड को प्ले कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्ले अ साउंड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। हम एक ही साउंड को कई बार प्ले कर सकते हैं कंट्रोल ब्लॉक की मदद से। सो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। द स्क्रिप्ट शोज अस हाउ टू सेट द वॉल्यूम व्हेन द की इज प्रेस। ये जो स्क्रिप्ट है ये बता रहा है कि कैसे हमें वॉल्यूम को सेट करना है जब जो है की को प्रेस किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 5% है यहाँ पे एंड न्यू का साउंड जो है प्ले किया जा रहा है। नाउ व्हेन द यूजर प्रेसेस द डाउन एरो की, जैसे यूजर जो डाउन एरो की को प्रेस करता है द वॉल्यूम जो है वो 5% तक रहेगी एंड जो कैट स्प्राइट है वो म्यू साउंड जो है प्ले करने लगेगा पूरी तरह। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 3। सो हियर यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ये जब टास्क दिया गया है इसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऐड द कैट स्प्राइट। कैट स्प्राइट को ऐड करना है हमें स्टेज पे। नाउ प्ले द कैट साउंड व्हेन वी क्लिक द गो आइकन। जैसे हम गो आइकन को क्लिक करेंगे तो जो कैट का जो म्याऊ साउंड है वो प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेन ब्लॉक। सो पेन ब्लॉक जो है इसमें दीज हैव द ब्लॉक्स दैट अलाउ अस टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जो हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में स्टेज पे। द पेन ब्लॉक्स आर ग्रीन इन कलर बाय डिफॉल्ट। ये जो पेन ब्लॉक्स है ये ग्रीन कलर के होते हैं। यूजिंग पेन ब्लॉक्स। सो अगर हमें ये जो पेन ब्लॉक्स है इन्हें यूज़ करना है तो वी नीड टू ऐड देम इन द प्रोजेक्ट। हमें पहले इन्हें प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। फॉलो द गिवन बिलो स्टेप्स टू ऐड पेन ब्लॉक्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसकी मदद से हम पेन ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्लिक करना है कोड टैब पे, फिर हमें क्लिक करना है ऐड एक्सटेंशन पे, फिर हमें क्या करना है सेट करना है पेन ब्लॉक को लिस्ट में से। सो जो पेन ब्लॉक है वो आ जाएगी हमारे प्रोजेक्ट में। नाउ लेट अस लर्न अबाउट देम। तो चलिए बढ़ते हैं क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे पेन ब्लॉक में उनके बारे में। तो पहला आता है क्लियर। ये क्या करता है, ये क्लियर कर देता है जो भी पेन के मार्क होते हैं स्टेज पे एक बार में। फिर आता है पेन डाउन। ये जो है पेन को नीचे की तरफ जो है डालता है जिसकी वजह से हम लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है पेन अप। इसकी मदद से पेन को हम ऊपर की तरफ कर देते हैं जिसके बाद जो है लाइंस ड्रॉ नहीं होंगी। फिर आता है सेट पेन कलर टू। इसकी मदद से जो पेन का कलर है प्रोग्राम में वो हम चूज़ कर सकते हैं। फिर है सेट द थिकनेस ऑफ द पेन। जो पेन की मोटाई है, कितना मोटा लिखना है कितना पतला लिखना है वो हम यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। फिर आता है स्टैम्प। इसे यूज़ किया जाता है डुप्लीकेट करने के लिए जो भी कॉपी है हमारे स्प्राइट की उसमें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल 1 स्क्रैच प्रोग्राम टू ड्रॉ अ लाइन। कैसे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं स्क्रैच में। सो
फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन स्क्रैच ऑन द कंप्यूटर। हमें स्क्रैच को कंप्यूटर पे ओपन करना है, फिर हमें क्लिक करना है पेन ब्लॉक पे और ड्रैग करना है पेन डाउन ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में। नाउ अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है चेंज पेन कलर पे एंड यहाँ पे हमें ड्रैग करना है इसे भी स्क्रिप्ट एरिया में। किसके नीचे, जस्ट जो भी प्रीवियस ब्लॉक था उसके नीचे हमें इसे डालना है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे से डाल दिया गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम द मोशन ब्लॉक, अब हमें मोशन ब्लॉक में जाना है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक को ड्रैग करके लाना है हमें स्क्रिप्ट एरिया में एंड जो भी यहाँ पे वैल्यू है 10 की उसको जो है रिप्लेस कर देना है 20 से। तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉक हमने यहाँ पे लगा दिया है एंड यहाँ 20 लिख दिया है। नाउ वी कैन सी दैट अ कलरफुल लाइन विल बी ड्रॉन। हम देखेंगे कि एक कलरफुल लाइन जो ड्रॉ हो जाएगी। इंक्रीज द वैल्यू इन ब्लॉक टू ड्रॉ अ बिगर लाइन इट इफ नीडेड। सो हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे 20 डाली, हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं ताकि हमें ये जो लाइन है वो और बड़ी मिल सके। सो ऐसे जो है हम इन ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, पेन ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज गिवन, स्क्रैच प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रैच में। सो सबसे पहले हमें स्क्रैच को ओपन करना है कंप्यूटर में, फिर हमें पेन ब्लॉक कैटेगरी पे जाना है और वहाँ से पेन डाउन ब्लॉक को लाना है हमारे स्क्रिप्ट एरिया में। फिर हमें चेंज पेन कलर को लाना है यहाँ पे ड्रैग करते हुए स्क्रिप्ट एरिया में पेन डाउन के नीचे। फिर हमें मोशंस ब्लॉक में जाना है, क्लिक करना है मोशन 10 स्टेप्स पे एंड ड्रैग करना है इसे स्क्रिप्ट एरिया में और उसको जो है 10 से 30 तक लिख देना है। तो हमने यहाँ 30 लिख दिया। फिर हमें जो है क्लिक करना है टर्न 15 डिग्री, इस ऑप्शन को चूज करना है। इसे ड्रैग करके इस ब्लॉक को लेके आना है हमारे स्क्रिप्ट एरिया में और मूव वाले ब्लॉक के नीचे लगा देना है और जो वैल्यू यहाँ पे 15 पे है वो उसे 90 कर देनी है। नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट ब्लॉक 4 टाइम्स टू मेक अ स्क्वायर। अभी जो फर्स्ट ब्लॉक है इसके ऊपर 4 बार हमें क्लिक करना है ताकि ये जो स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है वो बन सके। Now we can see that a colorful square will be drawn। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कलरफुल स्क्वायर जो है बन जाता है। Increase the value in the block to draw a bigger square if needed। अगर हम चाहते हैं कि एक बड़ा स्क्वायर बने तो हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पे डालनी है उसको बढ़ाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, अ स्क्रैच प्रोग्राम टू ड्रॉ अ सर्कल। अब हम सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रैच में। तो सबसे पहले हमें स्क्रैच को ओपन करना है, फिर हमें जो है पेन ब्लॉक पे जाना है, पेन डाउन ब्लॉक पे एंड इसे स्क्रिप्ट एरिया में लाना है। फिर हमें जो पेन का कलर उसे चेंज करना है एंड उसे भी स्क्रिप्ट एरिया में लाना है पेन डाउन के नीचे। नाउ अब हमें जो क्लिक करना है रिपीट 10 ब्लॉक पे एंड रिप्लेस कर देना है वैल्यू को 10 से 360 तक। नाउ अब हमें जो है टर्न ब्लॉक पे जाना है एंड इसे ड्रैग करके हमें अपने जो है प्रीवियस ब्लॉक के नीचे लगाना है और रिप्लेस कर देना है यहाँ पे जो 15 की वैल्यू से 90 से। अब हमें जो है मोशंस ब्लॉक में जाना है और हमें क्लिक करना है मूव 10 पे एंड ये जो ब्लॉक है इसे ड्रैग करके हमें स्क्रिप्ट एरिया में लेना है और यहाँ पे जो वैल्यू है उसे 10 से 1 पे कर देना है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। जो फर्स्ट ब्लॉक है उस पर हमें क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद क्या होगा, वी विल सी दैट अ कलरफुल सर्कल विल बी ड्रॉन। हम देखेंगे कि एक कलरफुल सर्कल जो बन गई है। ट्राई बाय चेंजिंग रिपीट टू 90 एंड मूविंग बाय 4 एंड टर्निंग बाय 4। सो ये जो ऑप्शंस दिए गए इन्हें भी हमें इंसर्ट करके देखना है क्या बनता है। दिस विल क्रिएट द सर्कल फास्टर देन अर्लियर। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारा सर्कल पहले बना था उससे तेजी से सर्कल यहाँ पे बनेगा इसे यूज करके। So this was the chapter. Now let's move on to reboot. So in Scratch, the script is created for the sprite, and it is the only object that can move. So every project has at least one sprite. The stage is divided into 4 quadrants. Stage को हम 4 quadrants में बांटेंगे using a horizontal line called the x-axis. यहाँ पे जो horizontal line है x-axis की वो आएगी and the vertical line called the y-axis, और जो vertical line है y-axis वो आएगी। There are a number of blocks available in Scratch. Scratch में बहुत सारे blocks आपको मिलेंगे that are used to control the sprite on the stage. These blocks are categorized into various types. ये जो blocks हैं इन्हें हम अलग अलग categories में डालते हैं जैसे कि motion, look, event, sound, pen, control, etc.
We can move the sprite a number of steps backward. हम sprite को काफ़ी सारे steps जो है backward और forward लेके जा सकते हैं और हम rotate कर सकते हैं इसे clockwise और anti clockwise motion block की मदद से. Looks blocks are used to change the look and appearance of the sprite, and we can also apply several effects to the sprite using looks block. Next, sound blocks are used to make sprite play sound. Sound block की मदद से हम जो है sprite को जो है sounds play करा सकते हैं. So ये थे कुछ important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. So here E exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is the sound blocks are used to make the sprite play sounds easily. Second, the looks blocks are used to change the appearance of the sprite. Third, the motion block is used to move the sprite. Fourth, the turn block rotates the sprite to point to a specified direction. Fifth one, stamp is used to make a duplicate copy of the sprite. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. So here the first one is the x axis and y axis tells the direction of the sprite. This is false. Second, you can insert only one sprite in a script at a time. True. Third, the motion blocks are used generally to run the script. False. Fourth one, looks blocks are used to show or hide the sprite in Scratch. True. And the fifth one is sound blocks are used to make sprite play sounds. This is true. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.